welcome back to my channel. My name is Vanshika and I am a CBSE 10th grader. So guys, if you are new here, then do subscribe and make sure to watch this video till end, because this video is going to be a very helpful video for you all. Because one thing that I can say in the very beginning of this video is that after watching this video, there will be a major change into your routine, into your study routine and into your life, which will automatically lead to, get you out of that stressful zone that you are in, that you are trapped in. So basically this video is going to be a study vlog plus a guide that how can you deal with stress. So yeah, let's just start the video. Now you just have to listen to the steps which I will be telling you guys, and till the end you will understand everything. Okay, so today I woke up at 6:30. पता है मैं आज जल्दी उठ गई थी. Okay, that's what I am doing these days. मैं 6:30 पर उठी थी. Then I freshen up, took a shower and it's 8:30 right now and here I am on my study table. अब मुझे लगता है मुझे मेरे काम से स्टार्ट कर लेना चाहिए. Okay, now I think I should clean my study table क्योंकि इतनी ज़्यादा बेकार हो रही है एंड मैं ऐसे में बिल्कुल नहीं पढ़ सकती. मुझे कुछ नहीं तो बस अपनी गंदी से स्टडी टेबल को देख कर ही स्ट्रेस आ जाता है. An organized and clean environment leads to a happy and free mind, and that's a fact. So the very next step is to clean your study table, and so did I. मैंने भी अपनी पूरी study table को अच्छे से साफ करा ताकि मुझे थोड़ा सा clean environment मिले. So as I woke up, I cleaned my room, I cleaned my environment, I had like freshen up and everything. I was feeling so fresh, and the next step was to have a good breakfast. क्योंकि you need a good breakfast. To have a good breakfast, I had papaya. मैंने papaya खाया था, ये जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, but still I had to. Breakfast करने के बाद I realized that it is now time to get to my studies and अब मुझे पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए क्योंकि मेरी books and copies मेरा study table पर वेट कर रही है. So I reached out there and it was now time to make a to-do list. मैंने मेरी टू डू लिस्ट ऑलरेडी बना रखी थी एंड मैंने तो पूरे 1-2-3 दिन के साथ में बना ली थी. लाइक 3 दिन की लगातार ऐसे प्रॉपर टू डू लिस्ट बना ली थी. बट स्टिल आई हैड टू हैव अ व्यू कि मुझे अब नेक्स्ट क्या टास्क करना है. वैसे तो मुझे अभी साइंस का सैम्पल पेपर करना था. लाइक मैं कर रही थी साइंस का सैम्पल पेपर, बट नेक्स्ट मुझे क्या करना है वो मुझे देखना था. सो आई हैड अ व्यू ऑन माई टू डू लिस्ट एंड मेकिंग अ टू डू लिस्ट इज अ नेसेसरी थिंग. प्लीज डू मेक अ टू डू लिस्ट क्योंकि टू डू लिस्ट बनाने से तुम्हें समझ में आएगा क्योंकि तुम्हें क्या क्या करना है एंड यू विल बी स्ट्रेस फ्री कि ठीक है भाई इतना सारा करना है. बट यू विल नो कि ठीक है मेरा एक टास्क होगा उसके बाद मैं दूसरा करूंगा या तीसरा करूंगी. सो प्लीज डू मेक वन. Remove all kind of distractions. Better switch off your mobile so that you won't be distracted while studying, and in the end if you won't be able to complete your task again you will be stressed. So better switch off ताकि आपकी पढ़ाई अच्छे से हो जाए. तो मैंने भी अपना मोबाइल स्विच ऑफ करा एंड ड्रॉर में पटक दिया ताकि मुझे दिखे भी ना, तो मैं वापस से स्विच ऑन भी ना करूँ. Now it's finally time to study. तो मैंने भी फिर पढ़ना चालू करा. नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस वन थिंग दैट स्ट्रेस कम्स फ्रॉम ईदर यू हैव नॉट प्रिपेयर्ड समथिंग और इफ यू हैव प्रिपेयर्ड बट यू स्टिल हैव सेल्फ डाउट्स. तो इसीलिए खुद को डिस्ट्रैक्ट करो, पढ़ाई में बिजी कर दो ताकि तुम्हें ये सारी चीज़ें दिमाग में ही ना आए कि क्या होगा. बेटर है स्टार्ट स्टडिंग, कंप्लीट ऑल ऑफ योर टास्क ताकि यू विल बी स्ट्रेस फ्री एट लीस्ट समवेयर. नाउ द नेक्स्ट थिंग हियर यू नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट यू नीड टू गेट ऑन टू गुड रिसोर्सेज. सो हियर आई हैव दिस एंड गेम बाय PW which can definitely reduce your stress because this will lead to a good preparation and a good preparation will lead to less stress. Now if I talk, so this book has so many features. Now if I talk about the subject it covers is science, math, social science and English. And the features, oh my god, cheat sheets, most probable questions, sample papers, answering templates, OMR filling tip, time management and don't skip something like that. So now let me take you inside the book. So firstly you will get the content part, then here is this answer writing template like thing which will tell you how you can present your answer in the best way. like कैसे comparison वाले आंसर को लिखना चाहिए, कैसे diagrammatic वाले, कैसे analyzing वाले एंड हर टाइप के आंसर को कैसे लिखते वो बताया है. This is this thing which is given for all 4 subjects. उसके बाद here is this OMR, how can you fill your OMR sheet, वो भी दिया है. Then comes the cheat sheet of each and every चैप्टर. सबसे पहले साइंस की चीट शीट्स दे रखी है. नाउ यू नो व्हाट गाइस, चीट शीट सबसे ज्यादा हेल्पफुल होती है क्योंकि चीट शीट्स में एक ही पेज में पूरा चैप्टर कवर अप हो जाता है जो कि हमारे दिमाग में एकदम पिक्चर हो जाता है. ठीक है, एंड दिस हेल्प्स अस इन मेमोराइजिंग थिंग्स व्हाइल गिविंग आवर एग्जाम. तो एग्जाम लिखते टाइम ना चीजें सारी दिमाग में याद आ जाती है चीट शीट से पढ़ते हैं. तो मैं रिविजन यूजुअली चीट शीट से ही फ्लो चार्ट के फॉर्म में ही पढ़ना प्रेफर करती हूँ.
एंड देन द नेक्स्ट थिंग यू विल गेट इज दोज मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन जिनके सॉल्यूशन आप QR कोड को स्कैन करके देख सकते हो। ये वो क्वेश्चन है जो कि रिपीटेडली एग्जाम्स में आए हैं एंड उनके इस साल भी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। सो ये हर चैप्टर के हर सब्जेक्ट के दिए हुए हैं, चैप्टर वाइज क्वेश्चन ऐसे सेग्रीगेट कर दिए हुए हैं एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट आई गेस। नाउ यू ऑल्सो डोंट हैव टू स्ट्रगल फॉर द लिंक, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, सो डोंट वरी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यू कैन डेफिनेटली गो एंड चेक दैट आउट। तो मैंने इतनी सारी स्टेप्स तो बता दी है दैट हाउ कैन यू रिड्यूस योर स्ट्रेस, वेकअप अर्ली, ब्रेकफास्ट करो, अपनी ऑर्गेनाइज करो, चीज़ें लाइक टाइम पर करो, ठीक है, अपनी चीज़ें क्लीन रखो, देन अच्छी रिसोर्सेज से जाओ ताकि आप स्ट्रेस फ्री रहो, आपको पता रहे कि आपको क्या क्या क्वेश्चंस करने हैं। नाउ द मेजर स्टेप इज टू टेक एक्शन। टेकिंग एक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तुम सुन लोगे, कर लोगे, बट मतलब सुन लोगे, एक्चुअली करोगे क्या, सुन लोगे, बट अगर उस चीज़ पे एक्शन नहीं लोगे इट विल नॉट बी वर्थ इट। ठीक है, टुडे यू आर वॉचिंग माई वीडियो, वॉचिंग अ 10 मिनट वीडियो, उसमें से अगर तुम 7 मिनट भी देख रहे हो, योर 7 मिनट्स विल बी वेस्टेड इफ यू वोंट टेक एक्शन। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस वन थिंग दैट टुडे आई एम स्पीकिंग हियर समथिंग एंड इफ यू आर अग्रीइंग विद दिस फैक्ट, वट एवर आई एम स्पीकिंग, दैट डूइंग दिस विल have that result and you still feel कि हाँ भाई ये सही बोल रही है and still you are not taking action for that, man, you are going in the wrong way. Please don't. If you are feeling right with whatever I just said, you should start studying today. And one major thing बताऊँ तो stress कहाँ से जाएगा, जब चीज़ें सही टाइम पर, सही जगह पर, सही तरीके से होगी। तो अभी भी जितना भी टाइम है, give your time, study for your best, push yourself as hard as you can because you also know that you are capable of doing a lot than what you are doing today. Okay, so now as you are done with one session of studying, you need to take a break and take break. और हाँ, एक चीज़ समझ लेना कि ब्रेक के टाइम पर फ़ोन मत उठा लेना वरना पूरा टाइम चले जाएगा। पर्सनली बता रही हूँ, एक्सपीरियंस है कि सच में इस बात का तो एक्सपीरियंस है कि ब्रेक में मैं ब्रेक लेती हूँ, मुझे ब्रेक लेने की आदत है पढ़ते पढ़ते, एंड ब्रेक में अगर मोबाइल उठा लिया तुम्हें पता नहीं चलेगा शाम कब हो जाएगी, रात कब हो जाएगी, एंड सोने का टाइम कब हो जाएगा, एंड देन यू नीड टू स्लीप, एंड बस वही रिग्रेट में और स्ट्रेस में सो जाओगे। तो इसलिए ब्रेक के टाइम पर मोबाइल मत लेना, इसका सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है मुझे, ठीक है। तो ब्रेक के टाइम पर मोबाइल तो बिल्कुल ही मत लेना। ब्रेक्स छोटे लेना, नॉर्मल लेना, थोड़ा सा रिलीफ वाले ब्रेक्स जिसमें तुम्हें अच्छा लगे, यू फील प्रोडक्टिव। हाँ, तो मैंने भी बस अपना साइंस का सैम्पल पेपर खत्म करने के बाद छोटा सा ब्रेक लिया था जिसमें मैं नॉर्मली ऐसे गैलरी में खड़ी थी या मेरे रूम में ये मनी प्लांट को देख रही थी कि मुझे इसमें पानी चेंज करना पड़ेगा, लाइक मेजरली नॉर्मल सा छोटा सा ब्रेक लेना। तो बस फिर जैसे ही मेरा ब्रेक खत्म हुआ, आई रिज्यूम्ड विथ माई स्टडीज़ एंड मैंने अपना स्टडी सेशन सेकेंड वाला स्टडी सेशन मैंने स्टार्ट करा, विच वॉज ऑफ हिस्ट्री। मुझे हिस्ट्री पढ़ना था। अब वन थिंग दैट यू कैन डू एट दिस टाइम इज़ दैट साइंस मेरे लिए टफ है एंड वैसे ही आपके लिए भी कोई एक सब्जेक्ट टफ होगा, बट SST मेरे लिए ईजी। आई फाइंड SST टू बी सॉर्ट ऑफ ईजी क्योंकि SST बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल एंड बहुत ही ज़्यादा सोशल रहता है, तो मुझे SST उतना टफ नहीं लगता एंड हिस्ट्री इज़ ऑल्सो ओके, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने साइंस पढ़ा एंड उसके बाद मैंने एक ईजी सब्जेक्ट ले लिया विच इज़ हिस्ट्री। तो इससे मेरी पढ़ाई थोड़ी कंटिन्यूएशन में चल जाती, वरना मैं अगर साइंस में पढ़ा एंड साइंस के बाद ही जस्ट मैं फिजिक्स का कोई सा एक चैप्टर उठा लेती कि नहीं मुझे साइंस ही पढ़ना है आज, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है वो पढ़ना। तो हाँ, खुद को मोटिवेटेड रखने के लिए, खुद की पढ़ाई अच्छे से रखने के लिए आई वुड सजेस्ट यू गाइज कि आप थोड़ा सा सब्जेक्ट्स चेंज करते रहा करो। इट्स जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन इफ़ यू वांट, सो दैट्स व्हाई आई गेव यू दिस सजेशन। तो बस मैं कर रही थी प्रिंट कल्चर का रिविजन। अब मुझे ये रिविजन वैसे सैम्पल पेपर या किसी से करना था, आई नो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने थे, बट मुझे ना ये प्रिंट कल्चर वाला चैप्टर उतने अच्छे से आता नहीं है एंड मैं चाहती थी कि इसका रिविजन मेरा बहुत अच्छे से हो। तो मैंने लगाया वन शॉट वीडियो लेक्चर एंड साथ में मैंने ऊपर से NCERT भी रीड करी, लाइक पूरी बिल्कुल भी अच्छे से रीड नहीं करी, डीप भी बिल्कुल नहीं करी, बट एकदम ऊपर से, ताकि मेरा प्रिंट कल्चर अच्छे से रिवाइज हो जाए। एंड देन आई वाज फाइनली डन विद दैट सेशन एज वेल एंड येस, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मेरे जितने भी मॉर्निंग के 2-3 टास्क थे वो मेरे हो चुके हैं अब, एंड दैट्स व्हाट यू ऑल्सो नीड टू डू। यू नो व्हाट, स्ट्रेस कम्स व्हेन यू हैव नॉट कंप्लीटेड योर टास्क इन द राइट टाइम एट द राइट प्लेस, दैट्स वेयर फ्रॉम स्ट्रेस कम्स फ्रॉम। तो अगर तुम 2 दिन अपने टास्क सही टाइम पर, सही जगह पर, सही तरीके से कर लोगे ना, तुम्हें खुद को समझ में नहीं आएगा स्ट्रेस कहाँ जाएगा। एंड ये चीज़ मैंने फॉलो करी है एंड मेरे रिजल्ट्स निकले हैं, स्ट्रेस मेरा चले गया है, ठीक है। इस टाइप से चले तो नहीं गया, बट देखो स्ट्रेस रहेगा, बट देयर विल बी अ पॉजिटिव साइड इन यू कि ठीक है तुम्हारा टास्क हो गया है। सो
I hope you guys will do that. So yes, that was it for this video guys. If you are new to my channel then do subscribe and thank you so much for watching this video. अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल रही ना, do comment. I would love to read your comments. अगर ये हेल्पफुल रही है then yeah, you guys can also follow that, and I'll be happy that someone has made a change into their routine by listening to Beat. That's going to be a very grateful thing for me, and it's all by my side. Like all the points were from me. Okay, so yeah, bye bye.